With the complexities of life, forensic medicine broaden कर रही है in its scope, और forensic expertise expected है in the case pertaining to therapeutic precedent, charges of the police brutality, drug overdosage, human right abuse, occupational and environmental hazard, auto and blunt injury evaluation, sexual assault and child abuse, जो कि आता है before the court. ये ऑब्वियस है कि अगर फोरेंसिक एस्पेक्ट इस तरह के केसेस की इंटरप्रेट ना किया जाए प्रॉपर पर्सपेक्टिव में, तो इनोसेंट पर्सन कन्विक्ट होगा और कन्विक्टेड पर्सन जो है हायर सेंटेंस में जाएगा अगर देन ही डिजर्व्स अ क्रिमिनल मे बी एक्विटेड. अगर इसीलिए जस्टिस टू बी डन करनी चाहिए तो डिफेंस भी मस्ट आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ द सर्विसेज ऑफ द प्रैक्टिसिंग फोरेंसिक एक्सपर्ट हु कैन इंटरप्रेट द ऑटोप्सी फाइंडिंग और द मेडिकल लीगल रिपोर्ट इन द प्रॉपर पर्सपेक्टिव. Medical expertise of such an expert is associated with a thorough understanding of the related legal issue. He is a proper person to advise on any possible inconsistencies between the apparent injury death seen and actual scientific finding. So crucial in many civil and criminal cases. He is cognizant of the true significance of the artifacts and the serious misinterpretation to which they are subject. At the present moment, in some countries, there is practically very little scientific opposition to the prosecution presentation of evidence and interpretation of the laboratory report. This too often means that contrary opinion and alternative possibilities are not presented in the court in comparatively expert manner. And this is not fair, as it may create the perception that the justice is not being done in the discipline dedicated to the discovery and the appreciation of truth. This pitfall need to be avoided by the provision for the services of medical legal expert to assist the defense also. On a number of occasions, such assistance is indeed essential to interpret the photograph and report of the pathologist and laboratory scientist, or else the one-sided interpretation of data, if unchallenged, could lead to serious miscarriage of justice. In fact, well-informed opposition is the need of the day. It can also improve the medical standard. Next, introduction to forensic nursing, a new perspective in healthcare. Virginia Lynch, MSN and Run Fellow, American Academy of the Forensic Sciences President, International Association of Forensic Nurses, USA. As the practice of medicine become more sophisticated, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जा रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, फिजिशियन और नर्सेज के लिए टू रियलाइज़ कि मेडिकल प्रैक्टिस जो है वो कैन नो लॉन्गर बी रेस्ट्रिक्टेड टू ट्रीटमेंट ओनली. इमरजेंसी डिपार्टमेंट, फिजिशियंस और ट्रॉमा केयर सेंटर्स जो हैंडल करते हैं नंबर ऑफ द केसेस जो कि इन्वॉल्व करते हैं लीगल प्रॉब्लम आल्सो. प्रॉपर और जो कंप्लीट मैनेजमेंट है इस तरह के पेशेंट की रिक्वायर करती है कि लीगल फैसेट्स और उनके केस हैंडल किए जाएँ विथ एज मच केयर एज इज एक्सरसाइज्ड इन द ट्रीटमेंट. While the various medical specialists do a fine job as far as treatment is concerned, a serious gap exists in attending to the legal facets in an equally satisfactory manner. ये एरिया है जहाँ पे फॉरेंसिक नर्स स्पेशलिस्ट जो है वो प्ले कर सकती है वाइटल रोल. उनके नर्सिंग बैकग्राउंड कंबाइन विद द मेडिकल लीगल एजुकेशन आइडियली सूट होता है इस पर्पज़ के लिए. मैनेजमेंट विक्टिम की ऑफ द वायलेंस इन्वॉल्व करता है टीम वर्क जहाँ पे नर्स फॉर्म करती है इंटीग्रल पार्ट. फिजिशियन नॉर्मली ट्यून होते हैं टू ट्रीट द पेशेंट. मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव द स्पेसिफिक अवेयरनेस ऑफ द फोरेंसिक रिक्वायरमेंट. वाइटल फोरेंसिक एविडेंस फ्रीक्वेंटली कलेक्ट नहीं किया जाता, लॉस हो जाता है या मिसहैंडल हो जाता है, जिसके नतीजे में मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है. हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो ट्रीट करते हैं विक्टिम ऑफ वायलेंस को, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रोटेक्ट करें पेशेंट के लीगल राइट्स को भी. सर्विस ऑफ द फोरेंसिक नर्सेज एंड अदर प्रोफेशनल्स विद द फोरेंसिक नॉलेज वुड अनक्वेश्चनेबली गो अ लॉन्ग वे टू फुलफिल दिस नीड. मार्चिंग बाय द टाइम, सम इंस्टीट्यूशन अब प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी फॉर द स्टडी एंड द प्रैक्टिस ऑफ फोरेंसिक नर्सिंग थ्रू द वेरियस प्रोग्राम, जैसे कि इंटर्नशिप इन द मेडिकल एग्जामिनर ऑफिस. इसके अलावा क्रिटिकल केयर प्रोग्राम इंटीग्रेटिंग द फोरेंसिक एप्लीकेशन, फिर इलेक्टिव स्टडीज़ इन सम यूनिवर्सिटीज़. बेसिक एम है कि यूटिलाइज करें अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ द नर्सेज इन ओवरऑल मैनेजमेंट बोथ मेडिकल एंड लीगल ऑफ द डाइवर्स सिचुएशन अफेक्टिंग द वेरियस पेशेंट विच इज़ द नीड ऑफ द डे. While the various area जहाँ पे expertise forensic nurse का utilize किए जाते हैं with the advantage would be delineated gradually, it is apparent that they are well suited to handle the certain situation, such as victim of trauma, domestic violence, sexual assault, drug abuse, and handling the certain cases of death investigation. Advantage of utilizing the expertise of the forensic nurse specialist are many. As the forensic nurse will collect and preserve the evidence in the emergency department and other situation, it will leave the physician free to attend to his and her medical duties without the anxiety of having to spend time in the court. It will also ensure proper justice to the victim. The medical legal evidence having been well cared by the forensically trained nurse. About
half to two-thirds of the medical examiner case load constitute natural death, which do not need the high investigative profile. It can be handled by the forensic nurse with the impunity, thus enabling the medical examiner to devote more attention to the other cases where it is necessary. The Canadian experience indicate that number 1, service of a forensic nurse investigator suits the next of kin hospitals, doctors and medical examiner system. Number 2, supplements the role of police investigator. Number 3, meets with most problems of the survivor on the account of personal contact of the nurse investigator. And number 4, significantly reduces the resentment and stigmata of the death investigation. This model of inquiry is sudden death case is being adapted in the progressive death investigation system in some countries. Next है investigation of trauma. इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्सेज का रूटीनली इन्वॉल्व होता है इन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट जो कि एडमिट होते हैं ट्रॉमा केयर में. इंजरीज क्राइम रिलेटेड होती हैं, सेल्फ इन्फेक्टेड. ये केसेस रिक्वायर करते हैं नर्स जो कि स्पेसिफिकली अवेयर होती है मैनर जिसमें नंबर 1 एविडेंस कलेक्ट किया जाए और प्रिजर्व किया जाए और नंबर 2 इंजरी डॉक्यूमेंट की जाए. एविडेंस से कि तो ये इंपॉर्टेंट होता है टू रिकॉग्नाइज एंड प्रिजर्व द ट्रेस एविडेंस थ्रू द केयरफुल हैंडलिंग ऑफ द पेशेंट क्लोथिंग और प्रॉपर पर्सनल प्रॉपर्टी को. क्लोथिंग जो पहनी जाती है एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट मे कंटेन ट्रेस एविडेंस, हेयर फाइबर, पेंट चिप्स, ब्रोकन ग्लास, स्टेन्स, ब्लड के, सीमन के. ये लिंक करेंगे असाइलेंट को विद द विक्टिम और द क्राइम सीन. Careful observation defects की in the cloth can be compared to the victim's wound. This may provide a hint as to the type of assault weapon. कुछ self-inflicted wound जो हैं confirm होते हैं by the non-alignment of the clothing damage with the injuries. वो केसेस जिनमें हिट एंड रन एक्सीडेंट होते हैं, टीयरिंग क्लोथ्स की, ग्रीस मार्क्स, रोड डर्ट, ग्लास पार्टिकल, मेटल पार्टिकल, पेंट फ्रेगमेंट एक्सेट्रा, ये ऑल असिस्ट करते हैं इन द रिकन्स्ट्रक्टिंग द इवेंट एंड इवन आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ द व्हीकल इन्वॉल्व. फायर आर्म डेथ में गन शॉट रेजिड्यूज क्लोथिंग पे प्रोवाइड करते हैं वाइटल एविडेंस. रेंज ऑफ डिस्चार्ज का आइडेंटिफाई करते हैं एम्यूनेशन को. बुलेट जो मिलती हैं क्लोथिंग में या बैंडेजेस या रिमूव होती हैं फ्रॉम बॉडी वो केयरफुली हैंडल की जाए. दे मे शो द मार्किंग विच मे हेल्प टू आइडेंटिफाई द फायर आर्म फ्रॉम विच इट वॉज फायर्ड. इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रैप द बुलेट विद द कॉटन to prevent the rattling and place each bullet in a separate container, preferably किसी क्लियर प्लास्टिक वन में ताकि वो विजिबल हो आउटसाइड से, और कंटेनर सील किया जाए और लेबल किया जाए फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन. क्या इन्फॉर्मेशन हो? विक्टिम का नाम हो, मेडिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो, उसमें डेट और टाइम हो रिकवरी का, साइट ऑफ रिकवरी हो, सिग्नेचर हो मेडिकल ऑफिसर का जो रिमूव करे बुलेट को या फिर नर्स का जिसने पैक किया है उसको, और इसके अलावा इन्फॉर्मेशन हो इन रिलेशन टू द चेन ऑफ द कस्टडी. क्लोथिंग को कभी डिस्कार्ड नहीं करना, ना ही फेंकना है फ्लोर पे क्योंकि इससे क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकती है ट्रेस एविडेंस की विद द डेब्रिस फ्रॉम द ट्रीटमेंट एनवायरनमेंट. अगर विक्टिम जो है वो रिमूव करता है क्लोथ्स को तो वो इट शुड बी डन विद द विक्टिम स्टैंडिंग ऑन अ क्लीन लार्ज शीट ऑफ पेपर. तो ये कैच करेगा एनी ट्रेस एविडेंस जो कि डिस्क्लोज हो सकता है. मेडिकल लीगल केसेस में देयर शुड बी अ रिटन ऑर्डर इन द चार्ट विद द इंस्ट्रक्शन, जैसे कि होल्ड क्लोथिंग फॉर, सबसे पहले कि होल्ड करें क्लोथिंग को फॉर द मेडिकल एग्जामिनर या कोरोनर. इसके अलावा सेव करें क्लोथिंग को पुलिस के लिए. इसके अलावा चेन ऑफ द कस्टडी फॉर द क्लोथिंग, एयर ड्राई द क्लोथिंग एंड होल्ड एज एविडेंस. एविडेंस जो है वो ऑब्स्क्योर होता है बाय द इमरजेंसी या ट्रॉमा केयर हो सकता है. ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक वुंड्स की जो है वो चेंज हो सकती है ड्यू टू द सर्जिकल एक्सटेंशन या एक्सीजन या नेचुरल हीलिंग प्रोसेस से भी. तो ये फिर पॉसिबल नहीं होगा टू रिकन्स्ट्रक्ट द ओरिजिनल इंजरी पैटर्न. सिर्फ वाहिद तरीका जो है टू प्रिजर्व दिस पोटेंशियल वैल्यूएबल एविडेंस कि उसको स्केच करें वुंड को, बॉडी डायग्राम को, या प्रेफरेबली उसकी फ़ोटोग्राफ ले लें प्रायर टू द अल्ट्रेशन. रिकॉर्ड करें उसकी लोकेशन और उसकी मेजरमेंट्स और डॉक्यूमेंट करें अल्ट्रेशन ड्यू टू थेरेपी. तो ये हेल्पफुल होता है टू रिकॉन्स्ट्रक्ट द ओरिजिनल इंजरी पैटर्न इन द सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन या एट द ऑटोप्सी. अगर बुलेट होल पोर किया जाए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट तो इनिशियल अपीयरेंस वुंड शॉट की रिकॉर्ड की जाए और कोर टिश्यू जो है सेव किया जाए गन शॉट रेजिड्यू एनालिसिस के लिए. इंजरी जो स्केच की जाए, फोटोग्राफ की जाए प्रायर टू द अल्ट्रेशन. कोई भी हेयर जो शेव हो या ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट वो भी प्रिजर्व किया जाए. रूल्स ऑफ एविडेंस रिक्वायर करते हैं चेन ऑफ कस्टडी फॉर ईच आइटम रिकवर्ड फ्रॉम द पेशेंट. ये इंक्लूड करता है फिजिकल और ट्रेस एविडेंस, लेबोरेटरी स्पेसिमेन, ब्लड के, बॉडी फ्लूइड, क्लोथिंग, पर्सनल आर्टिकल. इवन अनएक्सपेक्टेड डेथ को एक्चुअल या पोटेंशियल मेडिकल लीगल एस्पेक्ट हैं जो कि रिकॉग्नाइज की जाए. वाइल द बेस्ट स्पेसिमेन फॉर द हॉस्पिटल यूज इज द मोस्ट रिसेंट वन, द बेस्ट फॉर द फोरेंसिक पर्पज इज यूजली द फर्स्ट और द इनिशियल वन. घंटों के बाद या दिनों के बाद ऑफ द इंटेंसिव थेरेपी ये इम्पॉसिबल होता है कि डिटरमाइन किया जाए कंसनट्रेशन अल्कोहल की, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की या ड्रग की जो कि एट द टाइम ऑफ इंजरी थी. हैंस ऑल्दो हॉस्पिटल जो है वो नहीं बनाता यूज़ ऑफ द स्पेसिमेन ड्रॉन एट द सीन ऑफ इंजरी, देयर इज़ एन ऑब्लिगेशन टू रिटेन इट फॉर द FSL.
या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। अवेलेबिलिटी प्रॉपर स्पेसिमेन की टू डेसिफर द ऑब्जेक्टिव डेटा ज़रूरी होती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जब क्रिमिनल एक्टिविटी या एक्सीडेंटल डेथ सस्पेक्ट हो तो स्पेशल फोरेंसिक केयर ज़रूरी होती है टू हैंडल इवन द डेड बॉडी। तो इट शुड बी लेफ्ट इन द सेम कंडीशन एज इट वॉज प्रायर टू द डेथ, विथ ट्यूबिंग्स, कैथेटर भी लगे हों, अप्लायंसेस अपनी जगह पे हों, जब तक कि फोरेंसिक असेसमेंट ना की जाए। दस इंजरीज जो है वो डिस्टिंग्विश की जाती है फ्रॉम द थेरेप्टिक अल्ट्रेशन। थेरेप्टिक नीडल जो पंचर है वो मार्क की जाए पेन के साथ ताकि उसे डिस्टिंग्विश किया जाए उनको फ्रॉम द अदर्स विच आर नॉट सो। साफ किया जाए बॉडी को और पैकिंग बॉडी ओरिफाइसिस की शुड नॉट बी डन। अगर विक्टिम जो है वो मर जाता है गन शॉट इंजरी से या सेक्सुअल असॉल्ट से तो हाथ जो है वो इनक्लोज करने चाहिए पेपर बैग में ताकि प्रोटेक्ट किया जाए एविडेंस को, इस तरह के गन शॉट रेजिड्यूज़ को, या फिर फ्रेगमेंट ऑफ स्किन या हेयर बीनीथ द फिंगर नेल्स। डॉक्यूमेंटेशन देखें